کیونکہ ان کو ان کے پیروں نے بتایا تھا جس گھر میں 11ویں ہوتی ہے غوث پاک کی روح پاک جلوہ گر ہوتی ہے، غوث پاک کی روح تشریف لاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے مرنے کے بعد روحوں کی آمد کا عقیدہ، یہ شعبان میں بھی یہ بات آتی ہے، 15 شعبان کو بھی یہ بات آتی ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ حالانکہ قرآن نے بہت واضح طور پہ کہا من ورائہم برزخ، کہ یہاں سے ایک بار آدمی چلا جاتا تو ایک آڑ ہے، وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ جب روحیں علین اور سجین میں جاتی ہیں، آدمی انتقال کرتا ہے تو روحیں یا تو علین میں جاتی ہیں یا سجین میں جاتی ہیں۔ تو علین میں جب روحیں جاتی ہیں نا تو پرانے پہلے سے جو روحیں ہیں وہ نئی آنے والی روح سے سوال کرتی ہیں۔ کیا سوال کرتی ہیں؟ پوچھتی ہیں کہ بھئی فلاں کیسا ہے، دھماکہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسے مطلب سوالات کرتے ہیں، حال چال لیتے ہیں۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ جو روحیں یہاں سے چلی گئیں انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی خبر ہوتی تو وہ پوچھتے نہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ کیسا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ یہ اصل میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ روحوں کے تعلق سے بہت سارے عقیدے ہیں، ان کے روحوں کی ایک بہت ساری قسمیں ہیں کہ روحیں آتی ہیں، بھٹکتی ہیں، جیسے آتما کہتے ہیں وہ لوگ، اور آتماؤں میں ایک ہے ان کے ہاں پریت آتما، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ تو یہ سب ہندوانہ عقیدہ ہے بھائی، مسلمان میں، اسلامی عقیدے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس نے آپ کو بتا دیا کون سی قرآن کی آیت میں، کون سی حدیث میں کہ روحیں آتی ہیں؟ تو کسی کی روح نہیں آتی، جو ایک بار اس دنیا سے چلا گیا، پلٹ کے کوئی واپس اس دنیا میں نہیں آتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو معجزات دیے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ دوبارہ زندہ کیا۔ تو دوبارہ زندہ کیا جانا یہ معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو چیز ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، یعنی وہ نارمل چیز نہیں ہے۔ یہ روحوں کا آنا اگر نارمل ہوتا نا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہی نہیں رہ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی مر گیا، دوبارہ زندہ کر دیا گیا اس کو، یہ معجزہ کیسے رہ جائے گا بھائی؟ اس کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ یہ معجزہ کیسے بنے گا جب آپ نے اس کو اتنا نارمل کر دیا کہ ہر کوئی جو ہے مرنے کے بعد آ رہا ہے؟ بہرحال یہ تو عقلی باتیں کہ ایسا ویسا، لیکن اصل بات ثبوت چاہیے آپ کے پاس کہ کیا قرآن کی کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روحیں واپس آتی ہیں۔ آپ کسی کا ذکر کرتے اس کی روح واپس آتی ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف بات ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ ہم نے بلکہ خود حنفی علماء نے شیخ ایک حوالہ میں دینا چاہوں گا اس موقع پر، البحر الرائق جو احناف کی بہت مشہور کتاب ہے، کنز الدقائق کی شرح ہے، اس کے جو مصنف ہیں ابن نجیم زین الدین بن ابراہیم، یہ بہت مشہور کتاب ہے البحر الرائق حنفی فقہ کی۔ اس پہ وہ لکھتے ہیں وفی البزاریہ قال علماؤنا من قال ارواح المشائق حاضرۃ، کہ ہمارے علماء نے یہ فتاوی بزاریہ سے نقل کر رہے ہیں، اور یہ حنفی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بزاریہ میں یہ بات ہے منقول، قال علماؤنا، اور ہمارے علماء نے یہ بات کی، یعنی حنفی علماء نے یہ بات کہی ہے، من قال ارواح المشائق حاضرۃ تعلم، جو یہ بات کہے کہ مشائق کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور ہر چیز کا علم رکھتی ہیں، یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ حنفی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ ایسے لوگوں کو اس میں کافر قرار دیا گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مشائخ کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور وہ علم رکھتی ہیں۔ آگے فرمایا من قال بخلق القرآن فہو کافر، اور جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ تو کون کون سے لوگ کافر ہوتے ہیں اس کی بحث میں یہ بات لکھی ہے ابن نجیم نے کہ جو مشائخ کی روح کو حاضر مانتا ہے وہ کافر ہے، صرف قرآن و سنت ہی میں نہیں، حنفی علماء کی کتابوں میں بھی یہ بات، احکام باب و احکام المرتدین میں یہ بات لکھی کہ ایسا آدمی مرتد اور کافر ہے جو سمجھتا ہے کہ مشائخ کی روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ جی شیخ کنٹینیو کریں۔ اور آپ وہ بھی مشہور حدیث نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے یہاں دنیا میں کوئی نہیں آتا، نہ چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، حتیٰ کہ چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، یہاں سے جو ایک بار چلا گیا دوبارہ یہاں پہ کوئی واپس آ کے نہیں دیکھتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ اہتمام ہوا کرتا تھا، آج ہمارے پاس یہ اہتمام ختم ہو گیا۔
देखो ये भाई साहब बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये तमाम खत्म हो गया, शुक्र करें खत्म हो गया, बिदअत खत्म हो रही है ना, लेकिन ये सब बिदअत के खात्मे पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ये हमारे यहाँ से खत्म हो गया। भाई खत्म होना है ये, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आया बातिल मिट गया, बातिल मिटने के लिए आता है। बातिल की अलामत है कि वो एक दिन जो है उसकी मौत हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। हमेशा हक जो है वो हमेशा रहेगा। सलफ का जो अकीदा है वो अहदे सहाबा से लेकर क़यामत तक लोग उसको अपनाते रहेंगे, लेकिन ये बिदतें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आती जाती रहेंगी बिदतें, ये बिदतों की अलामत है। अच्छा शेख, ये जी, खास शुक्रिया। बात है कि जो बिदातें हैं ना, अभी आपने कहा नहीं कि बिदातों की अलामत है, तो अभी जब आप बिदातों की तारीख देखेंगे तो आपको ढेर सारी बिदातें मिलेंगी। पुराने बिदाती करते क्या है कि कोई बिदात जब खत्म हो जाती है तो कुछ नई बिदात चालू कर देते हैं, फिर जब देखते हैं कि वो लोग समझ गए और उसको बंद कर दिए तो फिर कोई बिदात ले आते हैं। आज अभी जोड़ेंगे ना पिछली सदियों को मिला करके मौजूदा सदी तक, तो अलमारियां भर जाएंगी, मतलब लाइब्रेरियां भर जाएंगी बिदातों की तारीख से, इतनी बिदातें हैं। लेकिन वो बिदातें खत्म हो गई, फिर नई बिदात, अब ये बिदात भी जाएगी तो क्या करेंगे, कोई दूसरी बिदात ये लोग लेके आएंगे अपनी तरफ से। तो ये जो आपने बहुत अच्छा जुमला कहा ना कि बिदातों की खासियत है कि बिदात आती और जाती रहती है, दीन आता जाता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाता है कि भाई लोग उसकी तरफ से मुजमहिल हो गए, लेकिन उस पर लिखा जाता है, उस पर मवाद हमेशा मौजूद होता है, उस पर गुफ्तगू हमेशा होती रहती है। लेकिन बिदातों का मामला ये होता है कि उस पर गुफ्तगू भी बंद हो जाती है। अब कितनी बिदातें पुराने जमाने की, उन पर गुफ्तगू भी नहीं होती है, वो नसियां मनसियां हो गई, बीबी की सहनाक और पता नहीं क्या क्या, सैयदा फातिमा से मंसूब, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब, लखनऊ के नवाबों के यहाँ और दिल्ली के पुरानी हवेलियों में सब कितने रस्म व रिवाज होते थे और उनके फजाइल थे। लेकिन आज उनपे ना उनका ना तो अमल है और ना तो गुफ्तगू है। लेकिन दीनी चीज रहेगी तो कभी अगर अमल तर्क भी हो जाएगा किसी हिस्से में दुनिया के, दूसरे हिस्सों में वो अमल रहेगा, और अमल अगर कहीं तर्क हुआ तो गुफ्तगू बाकी रहती है। ये सुन्नत की खासियत होती है। जज़ाकल्लाह, कंटिन्यू करें। हाँ जी जी जी। और ये भी मसला है ना कि जो नमाज है 5 वक्त की और जो सुनन बिल्कुल साबित शुदा है जिनमें कोई मसला नहीं है, उस पे अगर अमल नहीं हो रहा तो इन हजरात के तकरीरों में इनके यहाँ वो जोश नहीं दिखाई देता है कि उसके ताल्लुक से कुछ बात करें जो साबित शुदा हैं, जिनके सबूत में कोई मसला नहीं है, नमाज है और जो सुनन है। और बिदअत अगर मिट रही है तो ये हजरत तो रो रहे हैं कि भाई ये पहले होता था अभी नहीं हो रहा। इंशाल्लाह जो हो रहा है ना वो भी नहीं होगा, इंशाल्लाह ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे खल्क़े कुरान का एक अकीदा था किस ज़माने में खत्म हो गया, ऐसे बहुत सारी बिदअतें आई और मर गई। तो बिदअत आती है मरने के लिए, हक जो रहता है वो हमेशा रोने धोने से बिदअत को जिंदगी नहीं मिलने वाली है। मगर करो मेरे भाई, ये एहतिमाम करो, सच्ची अकीदत रखो। पहले के जमाने में बच्चियों की शादियां 13 साल में हो जाते थे, 14 साल में आते थे। कई ऐसी अभी भी हमारी माएँ हैं, उनको मिले तो 70 साल में परदादी बन गए। अरे क्या जी दादी माँ, तुम इतना जल्दी परदादी बन गए, आए क्या? अब हम रहने देते हैं इसको, आगे बहुत सारी बातें हैं लेकिन इसी पे इक्तफा करते हैं। खुलासा ये है कि ये साहब ने जो कुछ भी कहा कोई दलील नहीं दिया। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से इतना बड़ा दावा कर दिया कि 11वीं की बात उन्होंने कही है माअज़ल्लाह, जबकि उन्होंने नहीं कही है, ना उनकी किताब में है, ना उनके दौर के किसी आलिम ने नकल किया, ना ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से सबूत दिए, ना कुरान से ना हदीस से। आखिर में आके इन्होंने जो सबूत दिया वो कहाँ से, हमारी नानी अम्मा के दौर में होता था। और फिर इस पे रोना धोना कि भैया फिर से करो, तुम लोग भी करो, पहले होता था अभी नहीं होता था। ये तो मुशरिकीन का तरीका ना भाई, वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ें ये दलील साबित नहीं होती। ये इबादत का मसला 11वीं नजर न्याज की शक्ल, 11वीं का मतलब क्या भाई, न्याज की एक इबादत की शक्ल में आप इसको अंजाम दे रहे हैं, इसलिए इसकी दलील चाहिए। अब दलील आप नहीं दे सके, इतना सारा नारा लगवाया, सब कुछ किया, लेकिन दलील आप नहीं दे सके। बिल आखिर इतना नाराबाजी के बाद भी आखिर आपको रोना ही पड़ा, कोई दलील नहीं आपकी। तो खुलासा ये कि ये बिदअत है, कुरान हदीस में या सलफ सालिन से कोई दलील नहीं है। और आखिर में आती है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बरी हैं। मैंने उनकी किताब के हवाले से बता दिया उनका मनहज क्या है, उनका अकीदा क्या है। और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह जो सालिहीन और सलफ की तारीख़ पर उन्होंने उनकी ज़िंदगी पर किताब लिखी है सियर आलम नुबला, उसमें भी उन्होंने इनको सलफ़ीउल अक़ीदा बताया है कि इनका अक़ीदा मनहज सलफ़ी अक़ीदा था। इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह इन बातों से बरी है जी। अच्छा, एक बात मैं इस ज़िम्न में अर्ज करना चाहता था, वो ये कि जो हजरात इस बात की दलील देते हैं, यानी सदका करने की जो चीज पेश करते हैं कि भाई सदका की दलील मौजूद है,
ये दूसरे हजरात पेश करते हैं कि सदका की दलील मौजूद है। तो अगर सदका करने की आम दलील से किसी शख्सियत से जुड़ी हुई खास तारीख को खास अमल अगर साबित होता है, तो सवाल इस बात का है कि फिर बहुत सारी और भी शख्सियात हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और दीगर सूफिया हैं, फिर ताबईन एज़ाम, फिर सहाबे किराम, शख्सियात मतलब हजारों और बड़ी अजीम शान शख्सियात, और जो है सहाबे किराम के। आवाज जा रही है जैद भाई? जी आवाज आ रही है। ताबईन किराम, तबा ताबईन एज़ाम, सहाबे किराम में 3 सदियों की जो शख्सियात है उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि आम दलील से आपने तो एक खास अमल ले लिया, सदक़े की आम दलील है, उससे आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनकी 11वीं तारीख को आपने जोड़ लिया। सवाल यह है कि इतनी सारी शख्सियात जो हजारों हैं, उनमें से एक शख्सियत को खास करने की क्या दलील है आपके पास? कहां से आपने इस शख्सियत को खास किया? और फिर दीगर शख्सियतों की क्या गलती है भाई? उनकी किसी की 27वीं मना लीजिए, किसी की 29वीं मना लीजिए, किसी की 28वीं मना लीजिए, और तारीख वफात सहाबे किराम के देख लीजिए तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 45वीं, 100वीं, 1000वीं और वगैरह वगैरह पूरा आप मना लीजिए ना। और अगर आप नहीं मनाते हैं तो आप पर यह दलील देना लाजिम है कि आपने इन शख्सियात को छोड़कर इनकी तारीख वफात या इनकी मखसूस तारीखों को या इनकी खुशी की तारीखों को या इनकी गम की तारीखों को छोड़कर आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को क्यों चुना, और फिर उनकी इस खास तारीख को क्यों चुना? इस खास अमल के लिए खास दलील क्या है? अगर आप कहते हैं आम दलील, तो फिर आम दलील में तो सारे लोग आ जाएंगे भाई। आम दलील अगर सदका की आप पेश करते ना, तो सदके की आम दलील में सारे सहाबा, सारे ताबईन, सारे तबा ताबईन, सारे मुहद्दिसीन, सारे फुकहा, सारे अइम्मा, सारे सूफिया आ जाएंगे। तो खास अमल के लिए खास दलील ये हजरात जरूर लाए, ये मुतालबा है हमारी तरफ से। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा मुतालबा है, यानी कि वाज़े है कि भाई हर तारीख मनाना होगा, एक ही तारीख क्यों मना रहे हो? हर डेली कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और सहाबा को छोड़कर फिर उनकी भी तारीख वफात निकालो सबकी। जी शेख बताइए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि भाई वो मजहब में यानी मसलक में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को फॉलो करते हैं, यानी खुद से बड़ा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को समझते हैं, उनके अकीदे को, उनके मसलों को फॉलो करते हैं। उनके ताल्लुक से आपके वो जज्बात नहीं है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के भी, जिनको खुद वो अपने से ऊंचा जिनको समझते हैं, उनकी तकलीद की बात करते हैं, उनके मनहज को फॉलो करने की बात करते हैं। वो तो वो ये भी उन्होंने लिख रखा है। नहीं अकीदे के मसले में सलफी हैं, लेकिन ये जो फ़िक़ही मामलात है इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को फॉलो करते हैं। और ये जितने लोग हैं ना, ये सब जो है फ़िक़ह हनफी को फॉलो करते हैं। आप जरा सोचें कि इतना बड़ा पीर जिसको आप गौसुल आज़म करते हैं, गौसुल आज़म को नहीं पता चला कि कौन से मसलों को फॉलो करना चाहिए? भाई आप जरा सोचिए ना, कितना बड़ा आपकी बिगड़ी बना रहे हैं, आपको सब कुछ कर रहे हैं, और वो किस मसलक वाले हैं? हम्बली हैं। आप हनफी कैसे हो गए भाई? आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो है फ़िक़ही मजहब जो है, अकीदे में सलफी हैं, वो फ़िक़ह में हम्बली हैं। आप हनफी कैसे हो गए? अगर वाकई उनसे आपको अकीदत है तो आप हम्बली बन जाओ, आप हनफियत छोड़ दो। आप हनफियत नहीं छोड़ रहे हो और उनके मसलक को नहीं अपना रहे हो, और कह रहे हो कि हमारे गौसुल आज़म है, इतने बड़े हैं। कहाँ उनको आप बड़ा मान रहे हो? हरगिज़ नहीं मान रहे हो आप उनको बड़ा, तो आप उनके मसलक पर किसी और को फ़ौक़ियत दे रहे हो। तो इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को